Hi friends, welcome to Studies with Joy. So, our today's topic is ninth standard English chapter number 2.6, the past in the present. It is very nice topic. It is telling us about our habitual and our habits and daily habits and how to improve ourselves, how to behave in your home. We are going to learn in this chapter. So before starting, please like and subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video, and also share the video with your friends. So this topic I'm going to cover today will be your last chapter for this first semester. So let's start with it. I will just give you the central idea of this topic. The chapter The Past in the Present is a short skit that talks about the household chores that a boy must do. It highlights the bad habit of procrastination and conveys why one should avoid it. Okay, now let's start. It is a very nice topic. Don't skip the video. Watch it for. I'm sure that you will enjoy. So let's start with it. Let's know the characters of this topic. Characters first is Neil, a young teenager. Neil is the one of the main characters. Second, Mom, Neil's mother. Then a boy from 1950s, Neil's grandpa. A lady from 1950s, the boy's grandpa's mother. Okay, so in that way only his grandpa, great grandpa, and their mothers. It will be just written the boy's mother repeatedly, but we have to understand that is the its grandpa's great grandpa's mother. It has been mentioned. Okay, so next is a 1910 boy, Neil's great great grandfather. A lady from 1910, the boy's mother. मीन्स अभी यहाँ पर बॉयज मदर आया मतलब वो 1910 के बॉय की मॉम है. ओके, वो नील की मॉम नहीं है, ऐसा नहीं है. An 1800 boy, double great great grandpa, and a lady from 1800, the boy's mother. वहाँ पर भी वैसे ही वो डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा की मॉम है 1800 से जो लेडी है. A 1500 boy, double great great grandpa, a lady from 1500, the boy's mother. Again like that only. A 1000 boy, triple great great grandpa, a lady from 1000, the boy's mother. यहाँ पर भी वापस 1000 boy की mom है ये. She is not Neil's mom. 100 Christian Eva boy, triple great great grandpa, a lady from the first century. 100 C is also known as first century. Don't get confused. The boy's mother. So again, 100 C boy's mother is the lady from the first century. It's not the mother of the Nile. Everyone is not mother from Nile. An ancestor from 3000 BC. Nile's ancestor 5000 years ago. Ancestor matlab purvaj. A lady from 3000 BC. Then ancestor's mother. So 3000 BC से एंसेस्टर एक 5000 ईयर्स पहले वाले एंसेस्टर है नील के, और उसी एंसेस्टर की मदर है अ लेडी फ्रॉम 3000 बीसी. चलो हम लोग शुरू करते हैं सीन से, पहले सीन से. Now the skit starts. It is a drama scene. A typical teenage boy's room in a messed up state. So teenage मतलब at your age boy, and उसका messed up है, room बहुत ही ज़्यादा messed up है. Neil, mom, I put the dishes in the dishwasher just as you asked me to do. Now I am going out to meet my friends. Enter mom in a mod outfit. Mod outfit means distressed or modern outfit. Okay, very modern. Okay, we mod is the short form. Also, we can say that for the modern word. Mom, you haven't cleaned up your room. Neil, ow. I cleaned it only 2 days ago. Mom, you have to clean it up every day. Neil, picking up his books, clothes, headphones, etc. from the floor and bed and putting them in their places. Is it necessary to clean up every day? What difference does it make? Mom, it builds up the right habits, the right attitude. Neil cuts her short. All right,
All right. I get enough of lectures when school is on. So this is about Neil and her mom. So Neil just tells her mom that she has putted the dishes in the dishwasher. Now then her mom tells, you haven't cleaned your room, तुमने अपना रूम क्लीन नहीं किया. Everyone moms, सबकी मॉम ऐसा टोक टोक करती ही है, सबको पता ही है. You all will be also doing with that or going through with that, but that is nice for us because it builds good habits to us. Neil, ow, I cleaned it only 2 days ago. So Neil बोलता है कि मैंने तो 2 दिन पहले ही क्लीन किया था. तो उसकी मॉम बोलती नो, यू हैव टू क्लीन इट एवरी डे, रोज करना होगा. सो नील अपनी सभी चीजें उठाते थे, बोलता है क्या ये जरूरी है रोज क्लीन करना, क्या फर्क पड़ जाता है, रोज खराब होने वाला है ना. सो मॉम बोलती है हाँ ज़रूरी है, क्योंकि वो राइट हैबिट्स और राइट एटीट्यूड फॉर्म करता है. नील अपनी शॉर्ट कट कर देता है और ऑल राइट वो बोलते हैं हाँ मुझे वैसे भी स्कूल में बहुत लेक्चर्स मिलते हैं जब स्कूल ऑन होता है, तो अभी मुझे और लेक्चर्स नहीं चाहिए. सो नील इज अ गर्ल बिकॉज हियर इट इज मेंशन दैट नील cuts her short. Her means girl, okay? Or a boy also it can be. It's not necessary because here it is not mentioned properly. Mom, after Neil finishes his chores, that looks much better now. But you forgot to make your bed. Do that and you may go out. Okay? So mom tells that अभी ये अच्छा लगता है लेकिन तुम अपना बेड बनाना भूल गए, वो वो करो उसके बाद तुम बाहर जाओ. नील इरिटेटेड, नील इरिटेटेड हो गया. मॉम, इट्स गेटिंग लेट, द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच. व्हाई डू आई हैव टू मेक माय बेड, व्हाई? Mom, that reminds me of something I heard about your grandpa. When he was in his teens, he had many more daily chores to finish and much tougher ones too. So now नील की मॉम बोलती है तुमने अपना बेड नहीं लगाया. तो नील बोलता है अभी वो लगाने की क्या ज़रूरत है, मैं इरिटेट हो चुका हूँ, ऐसे भी अभी मैं सोने ही वाला हूँ लंच के बाद, तो वापस वो ख़राब हो जाएगा. सो उसकी मॉम बोलती है हाँ मुझे इससे याद आता है तुम्हारे ग्रैंडपा की डेली चोर्स के बारे में. डेली चोर्स मतलब हाउस होल्ड के काम, हाउस होल्ड काम टू फिनिश, वो तुमसे ज़्यादा टफर वंस करते थे, टफर चोर्स करते थे. मॉम, one that day his mom had told him firmly. A teenage boy from 1950s wearing loose trousers and shirt enters with his mother in a silk sari. So एक टीनेज, अभी एक सीन आ गया है, एक टीनेज बॉय फ्रॉम 1950, हमने पढ़ा था 1950 से एक बॉय मतलब नील के ग्रैंडपा और उसकी मॉम भी आ गई, नील के ग्रैंडपा की मॉम आ रहे हैं. द बॉयज मदर मतलब नील के ग्रैंडपा की मॉम होता है ना, मेक योर बेड बिफोर यू गोइंग आउट. सो अब नील के ग्रैंडपा की स्टोरी शुरू हो जाती है, अब मजा आने वाला है. 1950s बॉय यानी कि नील के ग्रैंडपा, बट मामा, आई हैव ऑलरेडी वाटर्ड द गार्डन, ब्रॉट होम द ग्रोसरीज, डस्टेड द लिविंग रूम, क्लीन्ड माय बाइसिकल, नाउ व्हाई डू आई नीड टू मेक माय बेड. सो उसकी मॉम नील के ग्रैंडपा बोलते अरे लेकिन मैंने सब कर लिया है, मैंने कितने सारे काम किए, मैंने गार्डन में पानी दिया, ग्रोसरीज लेके आया घर पे, डस्टेड द लिविंग रूम, फिर मेरी साइकिल भी क्लीन की, तो अब मुझे ये नहीं करना. तो बॉयज मदर यानी कि नील के ग्रैंडपा की मॉम टू हर सन, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रैंडफादर इन हिज टीन्स. अब नील की ग्रैंडपा के बारे में उसकी मॉम बता रही है. सो नील के जो ग्रैंडपा है वो है 1950s बॉय, अब उन 1950s बॉय के भी ग्रैंडपा के बारे में वो 1950s बॉय की मॉम बताएगी. ओके, टू हर सन, लेट मी टेल यू. The 1950s boy and mother reseat and stand behind, and 1910 boy enters dressed in kurta pajamas and cap with his mother in a 9-yard savi, nose ring and jewelry. So ये डिस्क्रिप्शन दिया है. 1950s के बॉय साइड में खड़े हो जाते हैं और अभी 1910 का बॉय
एंटर करता है। नहीं, हमने पढ़ा था 1910 का बॉय यानी कि नील्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और वो और उसकी मॉम ज्वेलरी पहनकर, सब कुछ साड़ी बड़ी पहनकर आ रही है, और वो कुर्ता पजामा पहन के आ हुआ है। 1910 मदर, 1910 मदर मतलब नील के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड, नील के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की मॉम। यू कैंट गो आउट अनलेस यू मेक योर बेड। अब वापस बेड की बात हो रही है। उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा को भी उसकी मॉम बोल रही है बेड बनाओ, तुम तब तक बाहर नहीं जा सकते। 1910 boy, mummy, I fetched water and filled up the pots, swept the terrace, collected wood for the stove, cleaned the grinding stones. वो बोलता है कि मैंने कितना सारा काम किया, मैंने पानी, filled up the pots, swept the terrace, collected wood, सब किया, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। तो नील, अब नील वापस आ गया। हाँ, to his mom, what are grinding stones? Ah, yes, they didn't have any electric grinders in those days. Mom, no electricity either in most towns and cities in India then. Neil like surprised. 1910 boy, 1910 boy कौन है? नील के ग्रैंडपा, याद रखो। I promised to go to the river side with my friends. Why do I have to make my bed now? The boy's mother to her son, let me tell you about your great grandfather who lived in the 19th century when he was young. So देखो, अब क्या हो रहा है कि नील पूछता है, उसकी मॉम उसको कहानी सुना रही है ना उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा की, तो नील पूछता है व्हाट आर ग्रिंडिंग स्टोन्स, उनका बारे में मेंशन हुआ था। सो उसकी मॉम बताती है कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिक ग्रिंडर्स, इसलिए वहाँ पर ग्रिंडिंग स्टोन्स यूज किया जाता था वो टाइम पे। नील के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा, नो इलेक्ट्र सो नील बहुत सरप्राइज हो गया, नो इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पे। फिर अब नील के ग्रैंडपा यानी कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा यानी कि 1910 बॉय, वो बोलता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स से प्रॉमिस किया कि मैं उनको मिलने जाऊंगा रिवर साइड पे। तो उनकी मॉम बोलती है नहीं, लेट मी टेल यू अबाउट योर ग्रेट ग्रैंडफादर। सर अब नील के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा के भी ग्रेट ग्रैंडपा, अब 1910 बॉय के ग्रेट ग्रैंडपा की एंट्री होगी। सो देखो, अब और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, ये एंसेस्टर्स पीछे पीछे जा रहे हैं। तब 1910 boy and mother recede to where the previous pair stands. 1800 boy enters in dhoti, kurta and small turban with his mother and a 9-yard savi and traditional jewelry. So फिर से डिस्क्राइब किया है क्या क्या पहन के आ रहे हैं। सो अभी 1800 बॉय, 1800 बॉय कौन था? 1800 बॉय भी एक कैरेक्टर है। 1800 बॉय है डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा ऑफ नील, और उनकी मॉम अ लेडी फ्रॉम 1800 इज उनकी मॉम, उसके डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा की मॉम। वो वो 1800 बॉय धोती कुर्ता और स्मॉल टर्बन पहन के आ रहा है, और वो उसकी मॉम साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन के आ रही है। तो अभी 1800 की मदर से सन मेक एवरीवन्स बेड। सो अभी 1800 की मदर बोलती है, यानी कि नील के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड, नील की डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा की मॉम बोलती है सन तुम सबके बेड बना। अब 1800 बॉय बोलता है मदर डियर, आई हैव वॉश्ड क्लोथ्स एट द रिवर एंड पुट देम अप टू ड्राई, आई आल्सो चॉप्ड द वुड, फिक्स्ड द ब्रोकन फेंस, took the goats up the hill to graze. I want to play atya patya with my friends. Why do I have to make the beds? The boy's mother, that's your daily work. Your great great grandfather did even more. Now go and make the beds. So अभी 1800 बॉय बोलते हैं मैंने भी बहुत सारे किए जैसे पहले उन्होंने किया, कि मैंने क्लोथ्स वॉश किए रिवर में, चॉप वुड को काटा, उस टाइम पे वो सब करना पड़ता था। वो जो ब्रोकन फेंस था उसको भी जोड़ दिया, गोट्स को ग्रास खिलाने भी ले गया। अब तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ अत्या पत्या गेम है, अत्या पत्या वो खेलना है, तो अब मुझे जाने दो ना, तो मैं क्यों बनाऊं बेड। तो देखो सभी उसके एंसेस्टर्स बेड बनाने में अवॉइड कर रहे हैं बेड बनाते, वो डोंट वांट टू मेक बेड्स। सो दैट इज एंसेस्टर्स के बारे में है, सबको एक ही हैबिट। और फिर उसकी मॉम बोलती है वो तुम्हारा डेली वर्क है। अब वो उस 1800 बॉय के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में बताएगी।
उसके भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की एंट्री होने वाली है. 1800 boy and mother recede to where the previous pair stands and recede to pair where मतलब सारे पैर स्टैंड कर रहे हैं एक जगह पे, सारे एंसेस्टर्स वहाँ पर साइड में. Enters 1500 boy dressed in a loose sleeveless V-neck top and short dhoti with his mother in a 9-yard sari. So अब एंट्री होती है 1500 बॉय की. 1500 बॉय कौन था? डबल डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा. अब डबल डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा उनकी मॉम आती है. फिर से वो उनके कपड़ों के बारे में पता चल रहा है. एक लूज स्लीवलेस वी नेक टॉप पहन के आता है और एक धोती पहन के आता है और उसकी मॉम साबी. सो नील, अब वापस नील आ गए. एंड दिस फोर फादर ऑफ माइन इज फ्रॉम, मतलब ये कौन से सेंचुरी से है ये वाले अभी 1500 बॉय. तो अभी मॉम उसकी नील की मॉम बताती है द 16th सेंचुरी से वो. तो 1500 बॉय बताता है माई डियर मदर आई हैव ऑलरेडी मेड द काउस टेकन देम टू graze, fetched vegetables from our farm, stacked them, swept the backyard and front yard. Now may I please go to play Ashtapada with Sampat Bhau and Mahadev Bhau? Why should I make my bed now? अब ये भी वही प्रॉब्लम बता गया. अब ये भी बेड नहीं बनाना चाहते. इन्होंने भी बहुत सारे काम कर लिए. अब इनको भी प्ले करना है अष्टपड़ा. अष्टपड़ा एक गेम है अपने फ्रेंड्स के साथ, संपत भाऊ और महादेव भाऊ. सो अब ये भी बोल रहे कि मैं भी नहीं बनाऊंगा. मैं क्यों बनाऊं? द बॉयज मदर, वाई डोंट टॉक बैक. थिंक ऑफ योर डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर व्हेन ही वाज अबाउट 14 years old. अब उससे भी पीछे जा रहे हैं. अब उनके भी डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में आ रहे हैं. सभी वाई डोंट टॉक, वापस मत बोलो, उल्टा मत दो. थिंक अबाउट योर डबल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. अब उनकी भी एंट्री हो रही है. लेट्स सी 1500 बॉय एंड हिज मदर रिसाइड, मतलब वो भी वो पैर बना के बैठ जाते हैं साइड में जहाँ बाकी सब खड़े हैं पैर बना के. एंड टू 1000 बॉय. अब 1000 बॉय कौन है? 1000 बॉय था ट्रिपल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा और उनकी मॉम भी आ गई है, लेडी फ्रॉम 1000. In a flat tunic and chubidar, waistband and turban with his mother in a sari, upper garment and plenty of jewelry. So बहुत सारा ज्वेलरी पहन के आ हुए हैं. वेस्ट बैंड है. ओके अभी देखते आगे. 1000 boy, most revered mother, I have fetched water from the lake and poured it into the farm channels to water our crops. I cleared the blocked channels and pulled out weeds. At home I patched the mud walls there were cracks. Now I have no time for anything else. Anything. I wish to go to watch the puppet show. Why do I have to make my bed? अब इन्होंने भी बहुत सारा काम कर लिया है. अब मेरे पास कोई टाइम नहीं है और कुछ काम करने के. लोग बोलते हैं और बोलते हैं अब मुझे पपेट शो देखने जाना है मेरे फ्रेंड्स के साथ. तो मैं भी नहीं बनाऊंगा मेरा बेड. सब वो भी बेड का ही प्रॉब्लम है. अब द बॉयज मतलब उनकी मॉम 1000 बॉय की. डू नॉट ग्रम्बल डियर सन. Your triple great grandfather had to do much more when you was your age. तो अब उसकी मॉम बोल रही है कि तुम्हारे भी ट्रिपल ट्रिपल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा को और भी तुमसे भी ज्यादा काम करना है. तो सभी की मॉम्स अपने अपने सन्स के ग्रैंडपा के बारे में बता रही है जिनको उनसे भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है. तो अब एंट्री होगी 1000 बॉय एंड हिज मदर रिसेट. वापस वो पैर में जाके खड़े हो जाते हैं. Enters first century CE, boy dressed in a dhoti and a waistband, no shirt, and his mother in a sari and an upper garment and beads jewelry. So अभी और बहुत ज़्यादा सेंचुरी. Enters first century CE मतलब वो है 100 CE बॉय. ट्रिपल ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा ऑफ नील और उसकी मॉम भी आ हुई है. उनके कपड़ों के बारे में बताया गया है. उनके पास नो शर्ट है. वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है. 100 CE बॉय माता देवी. सी लैंग्वेज इज ऑल्सो changing. Mata Devi, I fed the poultry, tended the sheep, kept the birds away for 4 hours in our field using a sling, also plastered the yard with dung. So इन्होंने भी बहुत सारे काम कर लिए. Dung से, dung मतलब काव डंगा. 100 CE boy, I wish to go and play bag
भाग चल with my friends. Why do you wish me to make the beds right now? अब ये भी बोल रही है मैं भी बेड्स नहीं बनाऊंगा, मेरे को भी खेलने जाना है, भाग चल. Again it is a game, I'm telling you, and again it is a game. Or with the boy's mother, because is what boys have to do. Let me tell you about your ancestor 3000 years ago. अब वो लास्ट जो कैरेक्टर बचे हैं 3000 ईयर्स वाले लोगों, उनकी भी एंट्री हो रही है. अभी इसकी भी मॉम उनको बता हुई है. सारा को सबको प्रॉब्लम कौन सा है, बेड निकालने का ही. सो लेट्स सी किसके एंट्री हो रहे हैं. फर्स्ट सेंचुरी बॉय एंड मदर इस साइड, वो भी पैर में खड़े हो जाते हैं साइड में. एंटर बॉय फ्रॉम 3000 BC. 3000 BC से कौन था, नील्स एंसेस्टर 5000 ईयर्स अगो, और उनकी मॉम भी आ गई है. A cloth around the waist held by a cord, long hair in a bun or ponytail, and his mother savi a veil, a stone and beads jewelry. सब आदिवासी की तरह है, एकदम आदिवासी. तो बहुत प्यारा टाइम है ना. 3000 BC बॉय के बारे में अभी हम लोग जानते हैं, वो क्या बोल रहे हैं अपनी मॉम को. 3000 BC boy, me bow to thee. Just again, the language is changing as we go behind in the past. Me hunted down the food for our family. Me helped father to carve stone bricks for our new house. Me dusted our leather clothes, molded mud pots for cooking and put them to dry. We need your kind permission to go and play chauper with me friends. Why does thou needs me to make my bed? इसमें ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज किए गए हैं. थी का मतलब है ओल्ड इंग्लिश फॉर्म ऑफ यू. हाँ, यू. दिस आर ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स. और हमने जो जो गेम्स मैंने देखे, चौपर. चौपर का मतलब होता है क्रॉस एंड सर्कल इंडियन बोर्ड गेम क्रिएटेड अराउंड 4th सेंचुरी. हाँ, ओके. सो अभी ये भी बोलते हैं कि मैंने भी बहुत काम कर लिया, अब मैं क्यों करूँ, मैंने कितने सारे काम किए, मड पॉट्स लेके आया, पुणे ड्राई भी किया, अब बस मुझे आपकी परमिशन चाहिए, चौपर खेलना है मेरे फ्रेंड्स के साथ. अब मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी बेड नहीं बनाऊंगा. अब देखो उनके इतने पुराने एंसेस्टर्स भी बेड बनाने में मना कर रहे हैं, देखो. सो ये एंसेस्टर्स के हैबिट्स है, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो अभी उनकी मम बोलती है द वॉइस मदर, बिकॉज मी से नो, सो डू इट नाउ. अभी इन्होंने नहीं बोला कि मैं इनसे भी पीछे का जाऊँ, मैं आपके ग्रैंडपा की मत बताऊँ, ये ऐसे नहीं बोली. इन्होंने सीधा बोलता मैं वैसे बोलती हूँ इसलिए करो अभी. सो जस्ट ऑर्डर्ड. ऑल मदर्स टू देयर सन्स इन टर्न रिपीट, डू इट नाउ. सो वो बोलते डू इट नाउ विद द बॉयज आंसरिंग यस मदर. सो अभी सब सारे मदर्स जो वहाँ पर ड्रामा में हैं सभी एक साथ बोलते हैं अभी के अभी करो, किसी भी हालत में. सो अभी बोलते कि अभी के अभी तुम लोग ये करो. तो लेट्स सी व्हाट नील सेज. Okay, so young teenage boys have had chores to do outdoors as well as in their homes. Mom, very much so, absolutely right. Neil, I wish I had a robot to make my bed and tidy up my room. Mom, nothing is impossible if you try, you make such a robot. But even for that, you need to work hard. The bottom line is go and make your bed. Curtain. सो यहाँ पर ड्रामा खत्म होता है. लास्ट में नील और उसकी मॉम आती है, वो बोलती है सो ऐसे ही सभी टीनेज बॉयज को करना ही पड़ता है. सो मॉम बोलती है हाँ बराबर, एकदम बराबर बोल रहे हो. नील बोलते हैं काश अब मेरे पास एक रोबोट होता, देखो कितनी मांगे. तो काश मेरे पास एक रोबोट होता जो बेड मेरा बनाता, टाइडी कर देता मेरा रूम. तो मॉम बोलती है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, वो भी तुम बना सकते हो, तुम अगर हार्ड वर्क करोगे. वो भी बनाने के लिए तुम लोग को तुम्हें हार्ड वर्क करना ही होगा, समझे. हर चीज में हार्ड वर्क करना ही होता है. बॉटम लाइन इज गो एंड मेक योर बेड. सो ये स्टोरी से हम लोग को यही मैसेज मिलता है हमारे इस बारे में कि हम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए हमारे एक घर में. ओके. सो हम लोग अभी थोड़े इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं. मैंने दिए हैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस के आंसर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ. पहला है इन द डायग्राम बिलो आंसर का द वेरियस फीचर्स दैट मेक द स्क्रिप्ट ऑफ अ स्किट और प्ले, लिस्ट द अदर वर्ड्स एंड मेंशन द फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑफ विच इट इज अ फीचर. सो हम लोग को यहाँ पर बोला गया है इन्हें एनसर्कल करना है और लिस्ट द अदर फॉर्म्स ऑल्सो. सो हमें अदर फॉर्म्स जो बाकी के वो किस में यूज़ होते हैं वो भी लिखने हैं, और जो
ये स्किट और प्ले बनाने में काम आते हैं वो वाले को एनसर्कल करना है। एनसर्कल का मीनिंग होता है सर्कल करना। ओके, सो मैंने सर्कल करके दिखाया है। स्टेज सीन एंड प्रॉप्स, एक्शंस, कॉस्ट्यूम स्पेसिफाइड, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, लाइव डायलॉग, ये सब स्किट के लिए। बाकी सेंडर्स एड्रेस और सल्यूटेशन इज फॉर लेटर, लीड लाइन इज फॉर रिपोर्ट, डायग्राम इज फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, next question है, choose the proper alternative to complete the following. First one, the skit covers a period of about dash in the past. 5000 years last character था तो 5000 years हो जाता है. Dash characters from Neil's ancestral lineage make an appearance in the play. There are 7 characters from Neil's ancestors. Okay, the task that all boys abhorred was making their beds. So सारे boys को उनका bed बनाना पसंद नहीं था. The skit conveys that doing our daily chores at home. उसका आंसर है, मैंने दिया है आप लोग को कि इंक्लूड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए हमें करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द टेबल। मैंने उसके लिए आपको आंसर दे दिया है, आप देख सकते हो। पीरियड 1950 वे ऑफ ड्रेसिंग दिया है, मैंने बॉयज कॉस्ट्यूम भी दे दिया है, लेडीज कॉस्ट्यूम भी दिया है, डेली चोर्स क्या क्या करना चाहिए वो क्या क्या करते हैं, और गेम्स भी दे दिए। सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग के लिए। आंसर इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट एक्सक्यूजेस डिड नील गिव टू अवॉइड क्लीनिंग हिज रूम? नील फर्स्ट ट्राइज टू अवॉइड क्लीनिंग हिज रूम by giving the excuse that he had cleaned his room 2 days before when his mom asked him to make the bed. He says that the bed would become messed up again when he would be rest after lunch, so there was no point of cleaning in it. Next question है, what does mother tell Neil about his grandpa? mother Neil tells Niels, notice वो टेरिसा नहीं होगा, वो होगा tells Niels होगा। ओके, मदर टेल्स आएगा वहाँ पर, आंसर टेल्स है। जस्ट रिमेंबर इट। Neil about his grandpa because his neglect to make the bed is similar to the that of his grandpa. और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, what does their grandpa wish to avoid? Grandpa wish to avoid making this bed. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि what did dance sister from 9 डांस सिस्टर नहीं है, वो है ancestor from 1910 which do not to do instead of making his bed. Instead of making his bed, ancestor not an sister from 1910 wanted to go to the riverside with his friends. Next question, did how many chores did the ancestor from 1800 have to do? Ancestor from 1800 had to do 5 chores: washing clothes in the river, putting them up to date, shopping the wood pigs in the broken pens, and taking goats up the hill to graze. Okay, और next question आ जाता है, how is the boy from 1500 dressed? It's not breast, it is dressed. It is not breast, it is dressed. Just remember it. The boy from 1500 was dressed up in a loose sleeveless V-neck top and short dhoti. Next question आ जाता है कि what shows did the boy from 1000 CE and 1st century do on his farm or field? The boy from 1000 CE fetched water down from the lake but put into the farm channels to water the crops, clear the blocked channels and poured out the wheels on his farms or fields. आंसर था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what did Neil realize from his encounter with his ancestors? Neil realized from his encounter with his ancestors that young teenage boys have had chores to do outside as well as indoors. Thanks for watching. We complete this topic here only. We complete with your English portion.